Hello guys, today in this video it's going to be very hacker video. In this video we are going to have a best timetable for any exam you might facing or you might facing difficulty in your online classes timetable, as you don't get a sufficient and enough time for a self-study. So here is a plan which is gonna help you. That's my guarantee. So let's start with it. Okay, the first thing is take make three tables with lots of columns like this. It's like I have written in big letters, it's not that it is that much. Okay, so from here 6 to 7, from like, if you are an early person you can wake up at 5, it's okay. But yes, if you are a late person, तो you need to try, अब आपको 6 बजे तक उठना ही है. Then 6 to 7 is your whole task day. अगर आप 5 बजे उठ रहे हैं, 5 बजे उठ रहे हैं, तो you need to do what? You can have your study at like 5 to 6:30, and then from 6:30 to 7:30 you can exercise. But अगर आप 6 बजे उठ रहे हैं तो it's difficult to study. तो आप 6 बजे उठेंगे, it will take 20 minutes to you to get ready for any task, yes, like exercise, study. तो अगर आप 5 बजे उठ रहे हैं तो आराम से आप कर पाएंगे जो सब्जेक्ट आपको डिफ़िकल्ट लगता है उसको कवर आराम से. बट वेयर एज 7, अब 6 से 7 कर रहे हैं तो you can do only your exercise and you can get ready for your online classes. Now from 7 to 8, task is like you can bath and the time arrange all the materials which is needed during the classes, that you not need to just get up again and again and then you need to search things and get panic. So here now from 7 it's to 8, and just before 15 to 10 minutes, only 5 minutes before the class, try to revise whatever you are just whatever you wanted, that yes, I want to do revise this and teacher is going to teach this. जो टीचर पढ़ाने वाला है, you are going to revise it before 5 to 10 minutes. Now like सबकी यूजुअली 8 से 1 होती है क्लासेस, तो सिमिलरली 8 से 1 बजे तक सबकी क्लासेस है. तो मैंने क्लासेस लिख रखी हैं, 1 से 2 तक हो सकती हैं. नाउ जस्ट लाइक 8 to 9 इज़ लाइक क्लासेस. तो 2 थिंग्स आपको हमेशा याद रखनी है क्लासेस की. एक तो नोट्स बनाना और साथ के साथ पहले क्लास के और बाद के क्लास के जो भी टीचर ने करवाया उसको रिवाइज करना. It's obviously very much important. Now here the third column was like going to be with the timetable with, like, third column was for subjects. Like subjects I feel hard maths and physics, so here I am going to do so. Then इसके बाद next from 8 to 9 my one class is there, like for example it's physics, so I'm going to make notes for regarding the topic from myself notes, and the teacher which is giving the notes उसको मैं लिखूँगी. ठीक है, 8 से 9 ये हो गया. 9 से 10 आपकी कॉल क्लास होती है, 20 to 10 मिनट्स या फिर किसी को ब्रेक नहीं मिलता है तो उसमें आप रिवाइज़ कर लीजिए और थोड़ा सा चिलअप हो लीजिए और नेक्स्ट क्लास के लिए भी रिवाइज़ स्टार्ट कर दीजिए कि आपको पता होता है कि टीचर क्या कराने वाला है. पर आपको रिवाइज़ करेंगे तो आपका ही फ़ायदा है, आपको फिर ज़्यादा स्टडी नहीं करनी पड़ेगी आगे के लिए. ठीक है, नाउ 9 to 10 आर क्लासेस. ओके, सो व्हाट इज़ the thing which is very unique about this is that I am dividing all the subjects in the 3 categories, which are hard, medium and easy. Hard is physics and maths for all. Medium I think for me is chemistry, I can do it, and it's math. Or if you think like SST is hard, it's according to you, आपका choice के according है. और मेरे लिए ईजी है बायो और
SST। तो मैंने इन तीनों को कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। अब जैसे यहाँ तक मेरी 1-2 बजे से लेकर 8 से 2 तक मेरी एग्ज़ाम्स सॉरी मेरी क्लासेस होती हैं। अब जो क्लासेस हैं, अब उसके दौरान भी हमको पढ़ना है। लाइक टीचर जो पढ़ा रहा है, आपको सेल्फ स्टडी भी उसके टाइम करनी है, बिकॉज यू गेट ऑलमोस्ट 1 to 2 और 3 आवर्स द रेस्ट। तो उस रेस्ट टाइम में आपको रेस्ट करना है, बट रेस्ट टाइम आपका बात का है। फर्स्ट यू नीड टू डू द थिंग्स विच आर नेसेसरी। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको करनी है, ठीक है। जैसे 11th आपका तब 2 बजे तक आपका सारे क्लासेस हो जाएंगी। आपको नोट्स बनाते रहने हैं, जो टीचर ने पढ़ाया उसको रिवाइज़ करना है। सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ एक बार देख लीजिए उसको पढ़कर, बिकॉज तब आपने एक बार लिख लिया ना तो आपकी वो मेमोरी में नहीं जाएगा। एक बार उसको देख लीजिएगा, पक्का उसको थोड़ा पढ़ ली। उसके बाद और कोई भी क्लास आए ना, उससे पहले 5 से 10 मिनट सारा उसकी मटेरियल रेडी रखिए, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, और साथ के साथ आप उसमें उस चीज़ को रिवाइज़ कर लीजिए जो टीचर कराएगा और जो उसने करा लिया है क्लासेस में। नाउ फ्रॉम 2 to 3 PM क्या करना है। अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो दिन में सो जाते हैं, फिर दे डू नॉट जस्ट गेट अ स्लीप एट नाइट, उनको फिर रात को नींद नहीं आती है, तो यू कैन अवॉइड स्लीपिंग। बट येस, अगर आप स्लीप नहीं कर रहे हो तो ये रेस्ट टाइम है 1 hour। इट नॉट मीन्स दैट you are going to watch TV. You can watch it, but here you are going to do 3 tasks. और ऐसा नहीं कि इसमें आपको डिनर ब्रेकफास्ट नहीं करना है, ये मैंने लिखा नहीं है बिकॉज इट्स ऑब्वियस। जब आपके घर में खाना बनेगा आप खाएंगे, तो ये कोई फिक्स टाइम नहीं होता सबके घर में, इसलिए अपने अकॉर्डिंग आप अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद फ्रॉम 2 to 3 आपका क्या टास्क होने वाला है। पहला टास्क होने वाला है, आप सोई मत। आप अपनी मम्मा को बोल के सो जाइए कि मम्मा मुझे ना 20 मिनट्स में आप वापस उठा देना। क्योंकि आप बोलोगे, आप ऐसे रीज़न दे के सोना, बोलना कि मुझे रात को फिर नींद नहीं आती। या फिर आप ऐसे पर्सन ने कि जो 2 घंटे दिन में सो लिया, 4 घंटे फिर अब वो वापस सो लिया, तो दैट्स डिफरेंट activity of your body, so it depends. Yes, it depends. Now from 2 to 3 आपका रेस्ट है। अगर इस तरह से कर रहे हैं कि 20 minutes is for your rest and then 40 to 30 minutes is for your TV, so it's okay and it's like for fun time. 1 hour is a fun time. बेसिकली आपके इस टाइम टेबल में 1 to 2 आवर मैं आपको फ्री दे रही हूँ, जिससे आप अपना क्वालिटी टाइम विद फैमिली भी स्पेंड कर सकें और साथ के साथ आपके लिए बहुत इजी रहेगा। नाउ इट्स 3 to 4। आपने चलो 1 घंटा पूरा टीवी देख लिया, मेरी बात नहीं मानी, लेट कर टीवी देख लिया, बोले लेटे भी टीवी देखते हैं, रेस्ट हो जाएगा। वो आपकी चॉइस है, आपको कैसे रिलैक्स मिलता है, कैसे आपको रेस्ट मिलता है। और 3 to 4 is a self study and a snacks and hard and medium time. सेल्फ स्टडी करनी है आपको 3 से 4, और उसके बाद आपको अपने स्नैक्स खाने हैं या फिर आपने पहले खा लिए हो, इट्स ओके। नाउ इट्स लाइक हियर, सॉरी फॉर दैट। नाउ आपका सेल्फ स्टडी टाइम है। तो जैसे जो आपके हार्ड और मीडियम सब्जेक्ट्स हैं, लाइक फॉर मी हार्ड इज मैथ्स, फॉर यू माइट बी SST, so it's dependent on you. Now study your hard to medium subjects which you have divided, the 3 levels you have divided. So first और second level आपको प्रायोरिटी है, चाहे तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको उसको कवर करना है। आपको वो हार्ड कैटेगरी में नहीं लाना नेक्स्ट टाइम, आपको उसको हलवा कैटेगरी में लाना है नेक्स्ट टाइम। इट शुड बी दो वेरी ईजी फॉर इट, हकुना मटाटा होना चाहिए आपके लिए, ठीक है। आप इतनी अच्छी तरह इसको पढ़ लीजिए कि नेक्स्ट टाइम तब आप नेक्स्ट महीने का टाइम टेबल बनाने लगे और मेरे चैनल पे आए, तो आपके लिए जो सब्जेक्ट आपके हार्ड कैटेगरी में था वो हार्ड में नहीं रहना चाहिए, वो सबसे लोएस्ट इजी कैटेगरी में आना चाहिए। पर जो आपके लिए हार्ड था उसको प्रैक्टिस करना कभी मत छोड़िएगा। ये अगर मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आपने इसको प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़ा, एक दिन भी आपने हार्ड और मीडियम सब्जेक्ट्स को नहीं छोड़ा, वो भी आपके लिए ईजी हो जाएंगे। और ईजी कैटेगरी को आपको इग्नोर नहीं करना है। आप बोलेंगे कि अब हमें क्या पता हमें कितने घंटे किसको देने हैं, तो मैं बताती हूँ आपको कितने देने। फॉर हार्ड यू आर गोइंग टू गिव लाइक ऑलमोस्ट 4 hours
और अगर आपको इतना नहीं होता, आप बोलेंगे पागल हो रही है 4 आवर्स, तो इट्स ओके, आप 2 घंटे दीजिए, 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा मैथ्स का पूरा प्रैक्टिसिंग में। पर जिसको लगता है कि नहीं 1 घंटा मेरे लिए बहुत कम है, तो इट्स ऑन यू, आपको 4 घंटे देने हैं। वैसे मेरे हिसाब से तो 4 आवर्स टू हार्ड, देन इट्स 3 आवर्स टू मीडियम, एंड देन इट्स 2 आवर्स और 1 आवर फॉर 1 to 2, हाँ 2 आवर्स फॉर योर ईजी। और ईजी आपके लिए जो है, जैसे मुझे SST में सिर्फ 15 मिनट्स लगते हैं, एक बार देख लिया मुझे पूरा चैप्टर समझ आ जाता है। तो वो मेरी अंडरस्टैंडिंग पर कि मेरा कैसा कंसेप्ट है, कंसेप्चुअल बेस है, उसके डिपेंडेंट पर मैं इसको करने वाली हूँ, ठीक है। नाउ फ्रॉम हियर 4 to 6 अब क्या है, और जगह जैसे आपने पहले भी पढ़ लिया, आपकी क्लासेस नहीं है उस दौरान, तो आप पहले भी पढ़ सकते हैं। उसकी आप अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट कर लीजिए कि हाँ मेरा दिन ऐसे स्टार्ट होता है। और मैं कह रही हूँ कि अगर आप 6-5 बजे उठने लगे तो दुनिया की ऐसी कोई शक्ति नहीं जो आपको रोक सके टू गेट अ सक्सेस इन योर क्लास, ठीक है। तो अब 4 से 6 क्या होने वाला है, देखो आप बोलेंगे थोड़ा तो फ्री दे, मैंने कहा 1 घंटे दे दिया ना, जो करना करो, मुझे मतलब नहीं है, आपका टास्क होने वाला है। पर मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है, फॉर सेट एन एग्जांपल। 4 to 6 क्या है, सेल्फ स्टडी एंड कवर ईजी पार्ट, जो आपके लिए बहुत ईजी है। जैसे मेरे लिए 1 घंटा, मैंने 4 to 5 क्या करूँगी, जैसे मेरे लिए कोई लाइव सब्जेक्ट है, SST है, या फिर मेरे लिए बायो है, तो मैं उसको कवर करने वाली हूँ। और 4 to 6 जो है वो सेल्फ स्टडी कवर होने वाला है, तो इजी पार्ट कर लूँगी। उसके बाद 2 घंटे तो लग ही जाएंगे इसी को करने में, या फिर 1 आवर्स एंड 30 मिनट्स दे दूँगी। और जो 30 मिनट्स बचने वाले हैं उसमें जो मुझे लग रहा है कि हाँ इसको फटाफट देख लेती हूँ, या फिर ये जो मीडियम वाला जो सब्जेक्ट मैंने लेवल में डिवाइड किया था वो नहीं हो पाया, तो उसको आप कवर कर सकते हैं। अब 4 to 6 आपने पढ़ाई कर ली है, टोटल 4 to 5 आवर्स की, मतलब 4 घंटे तो पढ़ ही ले हो आप अच्छी तरह। 5 तक तो क्लासेस के बीच में आपने रिवाइज़ कर लिया, वो भी एक पढ़ाई होगी। आगे आपको रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, बिकॉज अगर आप ये कर लेंगे तो आपको इतने घंटे नहीं देने पड़ेंगे, 7 घंटे टू योर स्टडीज़। तो 4 to 5 आवर्स आपने कर लिया, ठीक है। अब भाई जो बच्चे चाहते हैं कि हमें फर्स्ट नहीं आना है, वी जस्ट वांटेड हाँ अपने पासिंग मार्क्स आ जाए, या फिर हमें चाहिए कि हाँ हमें थोड़ा मीडियम एवरेज पे रहना है, बट जो चाहते हैं कि हमें कुछ करना है भाई, आना है, कोई रैंक लानी है क्लास में, या कोई NTSC क्रैक करना है, तो दे कैन फॉलो दिस इन लॉकडाउन। अभी लॉकडाउन तो है नहीं, बट यस, पर आप इसको क्वारंटाइन में जो कोरोना टाइम है, कोविड-19 पीरियड में आप इसको कर सकते हैं। बिकॉज़ ये मैं गारंटी देती हूँ कि अभी आपके स्कूल नहीं खुलने वाले हैं, और अगर आप ये सोच के बैठे हो कि अरे वापस जाएंगे और हमारा तब हो जाएगा, तो आई एम सॉरी, इट्स नॉट पॉसिबल। अब 6 से 7 आपका पूरा फ्री टाइम है, टीवी देख लो 20 से 30 मिनट, 30 मिनट के बाद 6:30 to 7 आप बाहर ज़रूर जाइए घर के। आप एक ही एटमॉस्फेयर में रहते हैं तो यू जस्ट फ्रस्ट आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, तो आपको एक ही जगह नहीं रहना है। यू नीड टू जस्ट लाइक, मतलब ऐसे भी नहीं घूमते रहिए, नो, आपको बाहर फ्रेश एयर में जाना है, ठीक है। नाउ इट्स 7 to 8 आपको क्या करना है, 7 to 8 इट्स फॉर मेडिटेशन, इट्स फॉर यू जिसके घर में पूजा पाठ होती है, लाइक आरतियाँ होती है ना घर में, तो वो कर सकते हैं। बिकॉज हमें इसमें इंक्लूड बहुत होना ज़रूरी है, बिकॉज उस टाइम पर पढ़ना तो किसी को है ही नहीं 7 to 8, बिकॉज उस टाइम पे तब हमारा माइंड होता है ना, वो बिल्कुल ब्लॉक हो चुका होता है। ये साइंटिफिक चीज़ है, ठीक है, जो मैं आपको बता रही हूँ। उस टाइम पे मेरा माइंड बिल्कुल ब्लॉक हो चुका होता है, एंड हमारी जो वी आर नॉट, हम एक नाक से सांस लेते हैं पूरे दिन, आप देखेंगे कि एक से लेते हैं छोड़ते हैं, बट उस टाइम पे हम अपने दोनों नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। उस वक्त हमारा मेडिटेशन का टाइम होता है। अगर आप मेडिटेट कर लेते हैं तो नो वन कैन स्टॉप यू टू अचीव योर सक्सेस, एंड सक्सेस इज़ इन योर फीट, देन आपके पैरों में आएगी सक्सेस, ठीक है। नाउ 8:30, अब 8 बजे चलो कर लिया, चलो आप टीवी देखने बैठ गए, कोई बात नहीं, मुझे मतलब नहीं, पर मैं बता रही हूँ कि मेडिटेशन इंडियन कल्चर है ना हमारा, तो ऑफकोर्स पूजा पाठ तो होती ही होगी, इसलिए मैं कह रही हूँ 7 to 8 आप टीवी देख लीजिए, आपका मर्जी। पर हाँ, जिनके घर में होती है ये अपना आप फिक्स कर सकते हैं। अब ना 8 to 10:30, ठीक है,
8:30 से स्टार्ट कर लीजिए। बोलेंगे इतना पढ़ाई हो गया तो कोई बात नहीं, 8:30 से स्टार्ट कर लीजिए। 30 मिनट्स आप भी चिल मार लीजिए, अपना फ़ोन पे देख लीजिए, यूट्यूब देख लीजिए, ठीक है, कुछ और चीज़ें देख लीजिए। पर 8 to 10:30 जो फॉलो करना चाहते हैं, या फिर 8:30 to 10:30, अब आपके इसमें बहुत काम है। और अगर आप ऐसे करोगे ना तो फिर आपको कुछ ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा। बोलेंगे हम सब्जेक्ट कवर नहीं कर पाए, अपना ये नहीं कर पाए। तो इसलिए कह रही हूँ 8 से स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद आप चिल मार लीजिए। देखो मैंने लिखा हुआ मेडिटेशन, प्रेयर एंड रिलैक्स। नाउ स्टडी कवर द सब्जेक्ट्स जो आपकी, जैसे मीडियम, हार्ड एंड ईजी, ये तीनों में से जो आपकी कुछ बच गई हैं चीज़ें, उनको कवर कीजिए। देखो आप बोलेंगे डिनर नहीं करें, तो हाँ करिए। 8 to 9 शुड बी योर टाइम स्पेंडिंग विथ योर फैमिली। या जब भी आपके फादर आते हैं यार, आप सब बैठते हैं, तो आपको देना चाहिए। यू नॉट लाइक मुझे जाना है पढ़ने, मुझे जाना है पढ़ने, नहीं। यू शुड गिव योर टाइम टू योर फैमिली एंड अ क्वालिटी टाइम। आप अपनी बातें शेयर कीजिए उनसे, वो अपनी करेंगे। सो लाइक यू विल फील वेरी रिलैक्सड। ठीक है, आप 1 घंटा पूरा अपना 1 hour and 30 minutes आप पूरा दे सकते हैं खाने को। यू कैन गिव, आप खाना दे सकते, मतलब खाना, डिनर। उसके बाद आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, संडेज़ को कपिल शर्मा देख लिया, दिस इज़ जोक। आप कुछ भी टीवी चैनल देख सकते हैं, मैं उसको प्रेफर नहीं कर रही, पर हाँ लाइक इट्स अ फैमिली शो। तारक मेहता बहुत बच्चे देखते हैं, तो इट्स ओके, आप देख सकते हैं। पर अगर आपको लगता है कि नहीं मुझको इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, तो आप ये 8 to 10:30 वाला मत फॉलो कीजिए, 11 बजे तक मत फॉलो कीजिए। बिकॉज आप नहीं पढ़ चुके हैं, आपको मैंने जो रिवीजन बताया, नोट्स का 15 मिनट रिवाइज़ कर लिया, तो उन बच्चों के लिए वही सफिशिएंट है। बट जो चाहते हैं कि नो वी आर गोइंग टू डू मोर थिंग्स, तो वो पढ़ सकते हैं इसमें। और कैन डू एनी सब्जेक्ट्स जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरा बच गया था। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना आप पूरा, कोई नहीं है ऐसा जो टाइम टेबल बनाया है उसको पूरा अच्छी तरह फॉलो कर लिया। बट आपको बहुत ट्राई करना है कि हाँ इस टाइम पे मेरा ये है तो ये करना है। और जो ऐसा तो है नहीं, इतने का बच्चे होशियार है नहीं, होंगे कई, बट कई इतने पंक्चुअल नहीं होते टाइमिंग के। तो वो क्या करेंगे, दे विल डू समथिंग डिफरेंट, उनके सब्जेक्ट्स बच जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, टाइम पास करने लग जाएंगे। तो इस समय वो कर सकते हैं। एंड 11 o'clock to 10:30 तो आपको सोना ही है, इट्स इम्पॉर्टेंट। और जो बच्चे जो दिन में सो लिए हैं उनका 11 बजे तक चल सकता है। बट यस, उनको अगर नींद आ रही है तो आपको वो लगे कि नहीं मुझे सोना है, तो यू नीड टू स्लीप। ठीक है, और आपकी मर्ज़ी है, आप इजी, हार्ड, मीडियम कोई सा भी करें। तो आई होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यस तो हिट लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड मैं लाती रहूँगी ऐसे मोर वीडियोज़ फॉर योर स्टडी हैक्स। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए स्टडी साइको हैक्स के। बाय बाय।